ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, which is for a certain substances for a certain substance the rate of change of vapor pressure P with respect to temperature T is proportional to the vapor pressure, VP लिख रही हूँ शॉर्ट में, and inversely proportional and inversely, 1 minute, proportional to the vapor pressure and inversely proportional to the square of the temperature. From a differential equation, form a differential equation expressing the given conditions and verify that P is equals to A into A raised to E minus K divided by T, where A is an arbitrary constant and satisfies the differential equation. तो क्या है, हमें बोला गया है the rate of change of vapor pressure P with respect to temperature T. ओके, सबसे पहले क्या है the rate of change of vapor pressure P with respect to temperature T, मतलब क्या हो जाएगा, rate of change मतलब dP by dt with respect to temperature T है तो dP by dt हो जाएगा, is proportional to the vapor pressure and inversely proportional to the square of the temperature मतलब proportional to vapor pressure क्या है हमारे पास P and inversely proportional to the square of the temperature. The square of the temperature मतलब क्या हो जाएगा T square, तो हमें ये मिलेगा dP by dt is proportional to P upon T square. ओके, जिसको हम लिख सकते हैं dP by dt is equals to K into P upon T square, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, form a differential equation expressing the given condition and verify that P is equals to this, where A is an arbitrary constant and satisfies the differential equation. मतलब हमें ये जो कंडीशन है dP by dt है
वो हमें प्रूव करना है कि फॉर p इज इक्वल टू a इंटू ए रेस टू ई माइनस के अपॉन टी, इसके लिए हमें ये जो सेटिस्फाई हो रहा है dp बाई dt इज इक्वल टू ये जो है k इंटू p अपॉन टी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले p इज इक्वल टू क्या है, a रेस टू e माइनस k अपॉन टी। सॉरी, फिर से मेरी मिस्टेक, मतलब ये क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे a रेस टू e माइनस k इंटू टी है, लेकिन यहाँ पे है a इंटू e रेस टू माइनस k अपॉन टी। मैंने पहले जो लिखा था वही सही था, a इंटू e रेस टू माइनस k अपॉन टी, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये p जो है वो हो जाएगा a इंटू e रेस टू माइनस k अपॉन टी, राइट। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैं फिर से लिख रही हूँ, ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तो p is equals to a into e raised to minus k upon t. This is our equation number 1. Now differentiating equation number 1 with respect to t, what we get is dp by dt which is equals to a, क्या है, arbitrary constant है, वो हमें बोल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ही, तो वो तो as it is रहेगा a into e raised to minus k upon t। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो तो एज इट इज होगा e रेज टू माइनस के अपॉन टी, लेकिन अब माइनस के अपॉन टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस के अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के ओके, वो तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय टी। 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट k into a into e raised to minus k upon t divided by t square। ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन, राइट। अब dp by dt, यहाँ पे हम p और t स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दे, ओके, तो dp by dt हमें क्या मिला, k into a into k into a into e raised to minus k upon t divided by t square। अब टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, के भी कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू माइनस के अपॉन टी। जी हाँ, ये मिल गया, यस, तो ये सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ, सो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। समझ में आया, यस और नो? ओके, सो next example, just so that v is equals to a upon r plus b where a and b are arbitrary constants, satisfies the differential equations d square v by dr square plus 2 upon r into dv by dr is equals to 0। okay, and number 2, ये हमारा फर्स्ट था, नंबर 2 is so that y is equals to 4 sin 3x is a solution of the differential equation। मैं सिर्फ डी लिख रही हूँ, समझ जाना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिर्फ डी नहीं लिखना है, यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ओके, व्हिच इज डी स्क्वायर वी बाय dx स्क्वायर प्लस 9y, सॉरी डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0।
ओके क्या है, so that v is equals to a upon r plus b है, where a and b are arbitrary constants बोल दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास दो arbitrary constants है, right? Satisfies the differential equation d square अभी d square v by dr square plus 2 upon r dv by dr is equals to 0। मतलब इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ऐसा हमें बताना है यहाँ पे, राइट? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर नंबर 2 जो है वो बोल रहा है, सो दैट y इक्वल्स टू 4 sin 3x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। मतलब इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्म करें तो हमें आंसर ये मिलना चाहिए। ओके तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों ही हमें दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है बेसिकली। ओके तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू a अपॉन r प्लस b। ओके तो अब ये तो हमें पता है हमें क्या लाना है, डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है r और b जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है दो, a एंड b। तो इन दोनों को हमें रिमूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 with respect to r, we get what we get, dv by dr is equals to a upon r। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a upon r square, as a is arbitrary constant, b is also arbitrary constant, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 0। ओके तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, ये r स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो वी कैन राइट दैट r स्क्वायर dv by dr प्लस a is equals to 0, ये हो जाएगा। ओके इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग equation number 2 with respect to r, what we get, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो r स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर, मतलब u इंटू v मेथड जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो r स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर, तो r स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r dv बाई डी आर प्लस r स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अब dv बाई डी आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी आर का डिफरेंशिएशन होगा d स्क्वायर v बाय डी आर स्क्वायर, और a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड तो हमारे पास 0 है ही, तो हमारा जो है डिफरेंशिएशन वो क्या है। अब इसको ना पूरे को हम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर है, ये जो है उसके जो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर dv बाय dr इज इक्वल्स टू 0, राइट? और ये हमें प्रूव करना था कि इसका सॉल्यूशन है। देखो ये हमें मिल गया डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर dv बाई dr इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। नाउ फॉर द सेकंड वन व्हाट वी हैव इज, सो दैट y इज इक्वल्स टू 4 sin 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 0। सेम थिंग यहाँ पे है। ओके तो क्या हो जाएगा, नंबर 2 वैसे ही सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 sin 3x है हमारे पास। ओके तो सबसे पहले इसको बोल देंगे नंबर 1, हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to x, what we get is dy by dx is equals to 4। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos, यस इट इज, लेकिन साइन 3 का क्या हो जाएगा इनटू 3 cos 3x। ओके तो अब ये हमें मिल गया which is equals to 4 into 3 which is 12 cos 3x, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे अगेन which is d square by dx square हमें चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
what we get is d square y by dx square is equals to, okay, अब cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 sin 3x, तो -3 into 12, तो जो हमारे पास था, और cos 3x का हो जाएगा sin 3x, which is equals to, we can write that -36 sin 3x, which is equals to -9 into 4 sin 3x, राइट, क्यों, क्योंकि हमारे पास y क्या था, y is equals to 4 sin 3x, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो we can write that d square y by dx square is equals to -9y, okay, and from this we can write that d square y by dx square plus 9y is equals to 0. Hence we have proved that this is a okay, y equals to 4 sin 3x is a solution of d square y by dx square plus 9y equals to 0. समझ में आया? Yes, ma'am. So next one. Okay, now differential equation of first order and first degree के मतलब solution of differential equation of first order and first degree. Okay. अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या है, ये तो हम लोगों को पता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ओके, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करना है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसे हमने यहाँ पे देखा क्या था, y equals to 4 sin 3x is the solution of equation, which equation, d square y by dx square plus 9y is equals to 0. इसका ये सॉल्यूशन है, वो हमें पता चल गया कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा, या फिर y equals to 4 sin 3x का अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हमें आंसर ये मिलेगा. ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया. लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है वो. तो ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर है. सेम थिंग आगे वाली जो थी ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी. डिग्री भले ही दोनों की 1 है लेकिन सेकेंड ऑर्डर थी, राइट. अब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, तो वो फॉर्म में होती है m dx plus n dy is equals to 0, या फिर we can write that ये क्या हो जाएगा, m dx is equals to minus n dy and we can write that dy by dx is equals to minus m by n, मतलब ऐसे कुछ फॉर्म में होगी. या फिर हम इसको लिख सकते हैं dy by dx plus m by n is equals to 0. इन तीनों में से मतलब this one और this one इसमें से कोई भी फॉर्म में है तो ये सारी की सारी जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो जब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसके ऊपर से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की, बट अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसके ऊपर से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. मतलब इन तीनों में से कोई भी टाइप का अगर है फंक्शन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जो आंसर होगा वो इन फॉर्म ऑफ होगा y is equals to f of x, मतलब something function y is equals to function of x anything, okay, plus c. तो ऐसा कुछ जो है हमें आंसर मिलेगा which is our solution of the differential equation. ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, काफी सारी मेथड्स है हमारे पास. ओके, सिंपल से जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे पास dy by dx है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो ही जाएगा. ओके, सो सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. इफ वी हैव dy by dx is equals to 2x plus 3, दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, और इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपल से हम इसको लिख सकते हैं
dy by dx integration with respect to x is equals to integration 2x plus 3 with respect to x. ओके, तो ये जो है वो इसका सॉल्यूशन इजीली हमें मिल जाएगा। तो ये dy by dx का इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा y। ये हमें पता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो ये दोनों जब एक साथ होंगे तो हमें आंसर मिलेगा y which is equals to integration of 2x is 2x square by 2 plus integration of 3 is 3x plus कांस्टेंट तो आता ही ऐड होता है, हमारे पास लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट ऐड होगा विच इज c तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या मिला y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, जैसे मैंने अभी बोला था कि y इक्वल्स टू समथिंग f ऑफ x प्लस c जो है वो हमारा आंसर होगा। वो देखो हमें यहाँ पे मिल गया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है? Yes or no? Yes sir. ओके तो अब इसके अंदर मेथड्स डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है सारे के सारे एग्जांपल। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी मेथड है, उसमें से सबसे पहली मेथड है विच इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो है वो मेथड क्या है? एग्जैक्टली लाइक जो इसका नाम है वैसे ही मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या करना है, जो वेरिएबल्स है उन दोनों को सेपरेट कर देना है हमें। सेपरेट करेंगे तो हमें जो आंसर है वो डायरेक्टली ही मिल जाएगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया dy by dx कि ये स्टेप है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ dy is equals to 2x plus 3 into dx। ओके, अब दोनों साइड सिर्फ इंटीग्रेशन ऐड करना है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dy is equals to इंटीग्रेशन 2x plus 3 dx। ओके, तो आंसर तो सेम ही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। मतलब एक साइड पे मैंने सारे के सारे y वेरिएबल रखे और एक साइड पे मैंने सारे के सारे x के वेरिएबल रखे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ऐसे ही मेथड करनी है हमें, x और y को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देना है हमें। जैसे कि हमारे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे m dx इज इक्वल्स टू माइनस n dy तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन m dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस n dy प्लस c, तो जो ऐड होगा वो होगा ही। तो ऐसे जो है वो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। हाँ, दो जो है आपको याद रखने हैं, बहुत ही इजी है। सॉरी, ओके, याद रखने के लिए फर्स्ट वन इज x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू, जब भी ऐसा केस आपको मिले x dy प्लस y dx तो आपको आंखें नीच के सीधे सीधे लिखना है d of x into y। कैसे d of x into y, मतलब x into y है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको क्या मिलेगा x into dy प्लस y into dx। देखो u into v अप्लाई कर लो, पहले x जो है एज इट इज रखना है, y को डिफरेंशिएट करना है तो dy हो जाएगा, फिर y एज इट इज रखना है, x को डिफरेंशिएट करना है तो dx हो जाएगा। तो आपको मिल गया x dy प्लस y dx, राइट। सेम थिंग सेकंड वन इज हमारे पास अगर है y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा d of x by y। ये सेम थिंग जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में किया वैसे ही यहाँ पे करना है d of x by y। तो x by y है तो y पहले आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस x यहाँ पे रह जाएगा और y का डिफरेंशिएशन होगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये सेकंड सेम थिंग फॉर द थर्ड वन x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा d of y by x, मतलब y by x हो, x by y हो या x into y हो, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको डायरेक्टली ही आना चाहिए। ओके, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं, ये तो याद रख लेंगे आप लोग। सो एग्जांपल फॉर दिस वन इज सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वन इज
dy by dx is equals to 3x square plus 2. ये अभी हमने शायद किया, यही किया ना, नहीं मतलब अलग था आंसर ऐसा आया था. सो dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2. तो मैंने पहले ही बोला कि एक बार एक साइड पे dy रखना है, एक साइड पे y के वेरिएबल्स रखने हैं, एक साइड पे x वेरिएबल रखना है. तो वी कैन रीराइट दिस एज dy is equals to 3x square plus 2 dx. Okay, now integrating both the side. What we get is integration dy is equals to integration 3x square plus 2 dx. ओके, तो dy है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y which is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस इंटीग्रेशन हुआ है तो कांस्टेंट c तो आएगा ही आएगा. सो आवर आंसर इज y is equals to x क्यूब प्लस 2x प्लस c. ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है dy by dx equals to 3x square plus 2, इसका सॉल्यूशन हमें मिला y equals to x cube plus 2x plus c. अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. करो dy by dx equals to क्या मिलेगा 3x square plus 2 plus 0. तो ये मिल गया y equals to 3x square plus 2. ओके, समझ में आया सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? यस और नो? Yes, sir. Okay. So number 2 is dy by dx is equals to sin x minus x. अच्छा चलो इसका सॉल्व करो तो सेम ही करना है. dy is equals to sin x minus x into dx. दोनों साइड इंटीग्रेशन करके बोलो मुझे आंसर क्या मिल रहा है. y equals to क्या है आंसर? minus cos x. उसके बाद minus x square by 2. यस माइनस cos x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है. Yes, ma'am. Okay, so this is our answer. Number 3 is we have क्या है नंबर 3 dy by dx is equals to x log x.
ठीक है। अब x log x है इसको करना है तो सेम थिंग हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू x log x dx तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन x log x dx। अब यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा तो u किसको लोगे x और log x को लेंगे। ओके तो इसको मैं लिख देती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x dx। चलो अब कंप्लीट करो और मुझे बोलो आंसर क्या मिल रहा है log x इंटू x का। कौन आंसर देगा मुझे? वन प्लस log x नो वो तो log x वो तो किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा? हमारे पास क्या है log x इंटू एक्स u इंटू v याद है ना मल्टीप्लिकेशन रूल। लिख दो चलो एक स्टेप में लिख देती हूँ log x हमारा u हो जाएगा तो क्या होगा log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x इंटीग्रेशन x dx और dx। अब इसका आंसर बोलो मुझे क्या मिल रहा है? मैं यहाँ पे लिखूंगी y इज इक्वल्स टू क्या आंसर? मानसी, वंशी, महिमा, निशित, देवांश x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c कांस्टेंट क्यों भूल जाते हो आप लोग? So आंसर इज x स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा हमारे पास log x minus 1 by 2 plus the constant c. This is our answer. Okay. Next इसके अंदर नंबर 4 which is x plus 1 dy is equals to 2xy dx. इसके अंदर क्या करना है सेम थिंग वेरिएबल सेपरेट करने हैं या फिर इसको बोलेंगे सेपरेबल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास dy है यहाँ पे dx है तो dx के साथ x रहेगा और dy के साथ y रहेगा। y यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आएंगे और ये x की टर्म है यहाँ पे इसको ले तो क्या हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x प्लस 1 dx। दोनों एक साइड y हो गया एक साइड x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1
dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल्स टू 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा x, नीचे क्या है x प्लस 1, तो प्लस 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y क्या होता है log y which is equals to 2। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, तो ये हो, अच्छा प्लस c करेंगे क्योंकि यहाँ पे log y हमने कर दिया पहले इंटीग्रेशन, तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इज सेम log मोड x प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर। Okay, next one, solve each of the following differential equations. Again, number 1 is x dy by dx plus y is equals to 3x square minus 2। अब बोला इसको वेरिएबल सेपरेबल पे कैसे अप्लाई करेंगे, एनी आइडिया? यस और नो? अच्छा चलो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है x dy by dx plus y, तो इसको हम लिख सकते हैं x dy plus y dx इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो इस सिर्फ ये दो टर्म अगर हम ले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x dy plus y dx अगर एलसीएम ले ले तो। यस और नो? तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा d ऑफ x इंटू वाई, जो हमने पहले देख लिया यहाँ पे क्या था, ये रहा x dy plus y dx equals to d by d of xy। क्या अब इस पूरी टर्म जो है हमारे पास x dy plus y dx is equals to dxy, इस पूरी टर्म को हम dx से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा x dy by dx y dx by dx and d by dx of xy, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x dy by dx plus y is equals to d of x d by dx of xy हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है टर्म x dy by dx plus y is equals to क्या मिलेगा, from this we can write that d by dx of x into y is equals to 3x square minus 2। यस और नो? समझ में आया क्या किया यहाँ पे हमने? ओके Yes. तो अब इसको हम आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ ये अब dx जो है यहाँ पे हमारे पास x into y तो है ही, ओके हमारा जो टर्म है वो भी x into y है, dx यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा d of x into y is equals to 3x square minus 2। ये ओके अगर x into y में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो we can write that x into y is equals to v, तो we can write that dv is equals to 3x square minus 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा dv का v is equals to 3x square का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x square divided by 3x cube by 3 minus 2x plus c 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा v is equals to x cube minus 2x plus c, but what we have is v is equals to x into y। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा x into y is equals to x cube minus 2x plus c।
Okay, so next example number 2 is dy by dx is equals to e raised to x plus 1 into y. सिंपल सी चीज है, ये तो हो ही जाएगा. dy upon y is equals to e raised to x plus 1 into dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dy upon y is equals to इंटीग्रेशन e raised to x plus 1 dx, which implies that integration of dy upon y क्या हो जाएगा? log y is equals to integration of e raised to x is e raised to x plus integration of 1 is x plus c. So this one is our answer. Next, number 3 is 1 minus y into x dy by dx plus 1 plus x into y is equals to 0. Okay. यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? इसको सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देते हूँ. okay. तो इसको सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले. जी हाँ. अब देखो क्या लिख रहा है हमें, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जैसा कुछ आ गया है हमारे पास. किसके लिए? एक्स इंटू वाई के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को x इंटू वाई से डिवाइड करके देखते हैं. ओके, अगर कुछ मिल जाए हमें. तो x इंटू वाई से अगर इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई, सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx is equals to 0. तो ये देखो हमें एक y की टर्म और एक x की टर्म मिल गई. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस y की जगह y माइनस 1 अपॉन y dy is equals to x plus 1 अपॉन x dx. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. yes or no? okay. तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y माइनस 1 अपॉन y dy is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x dx. इंटीग्रेशन करके मुझे बोलो आंसर क्या मिल रहा है?
1 minus ln x plus 1 plus c. Try it again. y कहाँ गया? y इक्वल्स टू ही आएगा, तो भी नहीं है. अभी भी मिस्टेक है. x माइनस ठीक है, 1 की जगह पे x आएगा. x माइनस ln, लेकिन x प्लस 1 नहीं होगा. वहां पे मिस्टेक की है. और किसी का आंसर आया? देवांश, निश्चित, मानसी, वंशी. किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? इतना छोटा सा तो इंटीग्रेशन है. करना ही क्या है? देखो, इंटीग्रेशन y अपॉन y हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन x हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x dx. 1 का इंटीग्रेशन होगा y माइनस 1 अपॉन n का y का डिफरेंशिएशन होगा log mod y is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस c. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y is equals to ये y यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस log y प्लस log x प्लस c. तो ये log x प्लस log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू y. तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस log x इंटू y प्लस c. सिंपल सा तो है, y इक्वल टू x प्लस log x y प्लस c. इतना टाइम क्यों लगा दो स्टेप के लिए? ठीक है, चलो 2 एग्जाम्पल है. और नेक्स्ट वन इज 1 अपॉन साइन इनवर्स x dy by dx is equals to 1. Okay, and second one is log dy by dx is equals to 2x minus 3y. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें पता है ये क्या हो जाएगा, dy is equals to दोनों x की टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगी, तो dx या फिर हम इसको लिखेंगे sin इनवर्स x dx. सिंपल से इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन ऑफ dy is equals to इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x dx. बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है? sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन याद है? है किसी को याद? यहाँ पे साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 1 dx प्लस c, क्योंकि यहाँ पे y का इंटीग्रेशन हमने कर लिया है. तो y इज इक्वल्स टू
अब साइन इनवर्स एक्स यू लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और इसका इंटीग्रेशन dx प्लस c हमारे पास था। अब ये कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो ये कंप्लीट कर लो। और सेकेंड वन है log dy by dx सॉरी log dy by dx is equals to 2x minus 3y। ओके, तो इसका क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, log dy by dx equals to 2। अब आपको ये पता है ना, log of x is equals to y है, तो we can write that x is equals to e raised to y। ओके, तो ये जो है log की प्रॉपर्टी हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो we get this dy by dx is equals to e raised to 2x minus 3y which is equals to e raised to 2x divided by e raised to 3y। So dy by dx is equals to this, so from this we can write that e raised to 3y dy is equals to e raised to 2x dx। From this integrating both the side what we have, integration e raised to 3y dy is equals to integration e raised to 2x dx। ओके, तो 3 और 2 इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 e raised e raised to 3y divided by 3 is equals to e raised to 2x divided by 2 plus c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये जो है वो कंप्लीट कर लेना और इसका आंसर मुझे भेज देना आप लोग। और ये जो है वो तो हमने कर दिया कंप्लीट। इसके बाद चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं, अभी मेरा 11th में लेक्चर है तो